السلام علیکم جناب، یہاں موجود ہیں ہم لیاقت مارکیٹ کے جو صدر ہیں حنیف گھانچی صاحب. یہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کیا کہیں گے ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جو آج ہماری بیٹھک ہے جو تمام صدور کے ساتھ جو ملیر کے ہیں، آج ہماری میٹنگ تھی اسسٹنٹ کمشنر ماڈل کالونی عطاء الرحمان بھائی کے ساتھ. ہم سب وہاں گئے تھے. 2 بجے آج ہماری میٹنگ تھی. اسی حوالے سے کہ جو 2-4 دن سے یہ بڑی گرما گرمی تھی کہ 2 چھٹی ہفتے کے اندر کرنی ہے، تو ہم اس حوالے سے ان کے پاس گئے تھے. ہم نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی کہ ہماری جو ہے وہ جمعے کو ہی ہم لیاقت مارکیٹ اور تمام دوسری مارکیٹیں سب جمعے کو بند رکھتے ہیں، لہذا ہماری ایک ہی چھٹی رہنی جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، حکومت سندھ کا آرڈر ہے کہ جمعہ اور اتوار جو ہے وہ چھٹی. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ اتوار کے علاوہ کوئی اور دن ہمیں دے دیا جائے. تو انہوں نے کہا حنیف بھائی اور سب مخاطب ہو کے کہا کہ ہم یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ مجھے جو گورنمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے اسے فالو کرنا ہوتا ہے. لہٰذا جمعہ اور اتوار جو ہے وہ بند رہی. تو وہ بات ہونے کے بعد ہم آج پھر ہم نے یہاں ایک میٹنگ کال کری. جو تمام صدور جو ہیں یہاں موجود ہیں، احتشام بھائی جامع ٹنکی مارکیٹ سے ہیں، رمضان بھائی محمدی مارکیٹ کے صدر ہیں، انصار بھائی ان کے عہدیدار ہیں، ذوالفقار بھائی لیاقت مارکیٹ سپر لیاقت مارکیٹ سے ہیں، دانش بھائی صدر ہیں سپر لیاقت مارکیٹ کے، یہ ماجد بھائی ہیں جنرل سیکرٹری محمدی مارکیٹ کے، اور احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لیاقت مارکیٹ کے وائس پریزیڈنٹ. تو ہم نے یہ مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ جمعہ اور اتوار کو جو ہے وہ بند رہے گی، سوائے گوشت، مچھلی، سبزی، فروٹ یا پرچون کا سامان. وہ دکانیں جو ہیں وہ اتوار کو کھلی رہے گی. وہ دکانیں بھی جو ہیں تمام لیاقت مارکیٹ جمعے کو مکمل بند رہے گی، اتوار کو وہ دکانیں کھلے گی، باقی دکانیں جو ہے وہ بند رہے گی. اس کے ساتھ جو ہے لیاقت مارکیٹ میں سما موبائل مال وہ بھی بند رہے گی اتوار کو. اس کے آگے مریم موبائل مال ہے وہ بھی بند رہے گی. ٹنکی کے اندر جو توکل موبائل مال ہے وہ بھی بند رہے گا. ٹنکی کی الیکٹرانک جتنی مارکیٹیں ہیں کالا کوٹ سے لے کے سودا باد تک وہ مکمل طور پہ بند رہے گی. ملیر میں جتنی بھی دکانیں ہیں وہ اتوار کو بند رہے گی. یہ ہمارا مشترکہ طور پہ فیصلہ ہے. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا دکاندار تو اس کو نقصان ہوگا، دکان ان کی سیل ہو سکتی ہے. ان نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اس جو بھی ہمارے یہ ایس او پیز ہے، ایس او پیز کے تحت ہی دکانیں بند ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اہم ٹائمنگ کا ٹائم جو ہے وہ صبح جو روزانہ کھلنا ہے وہ صبح 6 بجے سے 8 بجے، رات کو دکان بند کر دینی ہے. ہمیں اپنی دکانیں ایس او پیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، فاصلے رکھنے ہیں، ماسک کا استعمال کرنا ہے، سیل مینوں کو ماسک لگانا ہے، گاہکوں کو ماسک دینا ہے، دکانوں کی جگہوں کو کشادہ رکھنا ہے. اگر اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے دکانداروں کو پریشانی ہوگی. جی جناب، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت صدر لیاقت مارکیٹ حنیف گھانچی صاحب، جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے دکاندار کو آگاہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ ملیر کے جو صدر ہیں احتشام صاحب، یہ ملیر ٹنکی مارکیٹ کے صدر ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حنیف بھائی نے بہت وضاحت کے ساتھ تمام باتیں بتا دی ہیں. چند وضاحتیں اور بھی میں کر دوں اپنی مارکیٹ کے لیے، اور تمام جو ملیر کی مارکیٹ ہیں. ہمارا ایک الائنس ہے آل ملیر تاجر اتحاد کا، اس کے چیئرمین صاحب حنیف گھانچی صاحب ہیں. تو حنیف بھائی نے تمام تفصیل بتا دی ہے، لیکن ہم نے کوشش تو بہت کی کہ ہم ان معاملات کو اچھی طرح سے پچھلی دفعہ جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس میں بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کیا. اور اس دفعہ بھی کوشش یہی تھی. ہم نے کل بھی ایک میٹنگ کی، اس سے پہلے بھی حنیف بھائی نے فون کیا کہ اس طرح سے ہم نے اس پہ لاہ عمل بنایا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو پیر والے دن اور جمعے والے دن بند کریں. اس میں جناب عطاء الرحمان کاغذ صاحب جو اے سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے اس بات کو اتفاق بھی کر لیا تھا. لیکن کل رات کے اندر جو ایک نوٹیفیکیشن نیا آیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے بعد تمام معاملات پیچیدہ ہو گئے. اور جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے 2 دن کی چھٹی تھی وہ پھر ہمیں اس کو فالو کرنا پڑا.
फ्राइडे और संडे के हवाले से। तो अब ये वाज़ेह हो चुका कि जुम्मा और इतवार जो है वो तमाम मार्केटें बंद होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कॉपरेट ये किया कि हमसे कहा कि एक एप्लीकेशन आप दे दें अपने लेटर हेड पे आप, ताकि उसमें हम उसको फॉरवर्ड कर सकें डीसी के पास, और हो सकता है कि शायद इम्प्लीमेंट हो जाए कि हमें 2 दिन कोई एक्स्ट्रा दिन संडे के अलावा कोई एक्स्ट्रा दिन मिल जाए। तो ये उनकी बहुत आला ज़रूरी है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उससे उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा। तो इंशाल्लाह कल हम उसको एक एप्लीकेशन भी दे देंगे इस हवाले से। तो आगे की तरफ तमाम मामला हम देखेंगे इंशाल्लाह। और जो लॉकडाउन के हवाले से बात है, वो लॉकडाउन में हमने कहा कि मार्केट के अंदर जो टाइमिंग बताई है वो टाइमिंग को फॉलो करना है। SOPs का ख्याल रखने के हवाले से तमाम लोगों का अवेयरनेस है, ये पहली दफ़ा नहीं होगा, अब अवेयरनेस हो चुकी है। तो मज़ीद वजाहतों की ज़रूरत नहीं है। अब लॉकडाउन किस तरह से होता है और SOPs क्या होती हैं हर किसी को पता चल गया, लेकिन पहले शायद नहीं पता था। तो अब इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तमाम लोग फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी जनाब, ये हमारे साथ मौजूद थे जामा टंकी मार्केट के सदर एहतशाम अली सिद्दीकी, जो लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ जामा सुपर लियाकत मार्केट के भी सदर दानिश साहब मौजूद हैं। दानिश साहब से भी बात करते हैं। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अभी हनीफ भाई ने एहतशाम भाई ने बिल्कुल वही बताया। 2 दिन से हम लोग लगे हुए थे इस मामले में कि ये छुट्टियों का चक्कर आ रहा था कि जुम्मा छुट्टी है। हमारी कोशिश यही थी कि जुम्मा और पीर का अगर छुट्टी का हो जाए तो हमें आसानी हो जाती, लेकिन बस नहीं हो सका। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी बोला था इस हिसाब से मीटिंग हुई है, तो उनसे बात हुई है, इंशाल्लाह लिख के देंगे उन्हें, वो डीसी साहब को फॉरवर्ड करेंगे। अल्लाह करे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। बहरहाल अभी जब तक ये एप्लीकेशन आ गई है, कोई इजाज़त नहीं मिलती, तब तक जुम्मा और इतवार सुपर लियाकत मार्केट और हम तमाम जो जितने भी सदर बैठे हैं, हमारी मार्केटें बंद होंगी। तो बराए मेहरबानी दुकानदारों से भी गुजारिश है कि रास्तों को कुशादा रखें और मास्क का इस्तेमाल रखें, मास्क इस्तेमाल करें, सेलमैनों को भी दें। और 8 बजे 6 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग दी है गवर्नमेंट ने, तो 6 बजे तो मुमकिन नहीं है आना, तो 9 बजे से 8 बजे तक दुकानदार 8 बजे दुकानें अपनी बंद करें और कोशिश करें कि सुबह जल्दी आ सकें। 9 बजे 9:30 बजे अपनी दुकानें ऑन करें तो इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। और SOPs का ख्याल रखें, हर किस्म की परेशानी से बचेंगे। शुक्रिया। जी जनाब, ये हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त सुपर लियाकत मार्केट के सदर दानिश साहब। इनसे बातचीत हो रही थी। लियाकत मार्केट की नाम से सुपर मार्केट है, वहाँ पे जो है अपने वाइस चेयरमैन है जुल्फ़िकार साहब, इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। रसूलुल्लाह रसूल करीम। मेरे नहायती काबिल एहतराम हनीफ घाची प्रेसिडेंट लियाकत मार्केट और एहतशाम साहब सदर टंकी मार्केट और रमज़ान साहब मोहम्मदी मार्केट और सुपर लियाकत मार्केट के हमारे सदर दानिश भाई और मैं चेयरमैन जुल्फ़िकार। ऐसा तो हनीफ घाची साहब ने, एहतशाम साहब ने, रमज़ान साहब ने, माजिद साहब ने, दानिश साहब ने तो हर चीज़ खुल के बयान कर दी है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं एक अपनी मार्केट से मुखातिब हूँ कि बराए मेहरबानी, जैसे हनीफ घाची साहब ने ख़ास तौर पर इस पर जोर दिया है कि जुमे और इतवार का इसका ख्याल रखें, क्योंकि ये एसी ने ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर ये दुकान अगर इस पर खोलेंगे, वायलेशन अगर करेंगे तो मैं उसकी दुकान 3 दिन सील करूँगा। तो मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए दुकानदारों से गुजारिश करूँगा जुम्मा इतवार को मुकम्मल दुकान अपनी सारी बंद रखें और सुबह 6 से 8 तक दुकान खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब। इनसे बात करते हैं। जेलानी अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये लॉकडाउन के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। मेरे मोहतरम हनीफ भाई और एहतशाम भाई टंकी मार्केट और जुल्फ़िकार भाई सुपर लियाकत मार्केट चेयरमैन, दानिश भाई सुपर लियाकत मार्केट सदर, रमज़ान भाई मदीना मार्केट खोखरापार नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपस में सारे मिलकर मुशावरत कर लेते हैं। और जैसा कि लॉकडाउन का मसला है कि जुम्मा और इतवार को दुकानें बंद होंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी पाबंदी करेंगे और SOPs का भी ख्याल रखेंगे। और दुकानदारों से मेरी गुजारिश होगी कि वो रास्ते को कुशादा करें और SOPs पे मुकम्मल अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हमारे साथ ये मौजूद हैं इस वक्त टंकी जामा मार्केट के यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से? सर लॉकडाउन के हवाले से सबसे पहले जो है हमारे हनीफ साहब हैं, एहतशाम भाई हैं
اور माशाल्लाह पूरे मलिर के जो अलाइंस है इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और जो है इन्होंने कल भी मीटिंग की, आज भी मीटिंग की। लेकिन इस वक्त मुख्तसर सी बात मैं करना चाहूँगा, वो ये कि लॉकडाउन के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अपना नोटिफिकेशन इशू किया है, तो उस पर हमने अमल करना है। हम उसके लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमें ये करना है कि रूल्स को फॉलो करना है और मार्केट के जो टाइमिंग है उनको भी देखना है और SOPs का भी ख्याल करना है, ताकि हम बड़े नुकसान से बच सकें। कानून को फॉलो करना जो है वो हमारा हक है। तो आप दुकानदारों से गुजारिश है कि कानून को जो है वो फॉलो करें, रूल्स जो है SOPs के हवाले से और टाइमिंग के हवाले से वो करें। और बाकी जुम्मा और इतवार 2 दिन बंद करने का किया है, तो इसमें भी कोऑपरेट करें तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हम यहाँ मोहम्मदी मार्केट खोखरापार 1 नंबर पे जो वाक़ है, इनके सदर रमज़ान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। जी, ये अलायंस के चेयरमैन माशाल्लाह मोहम्मद हनीफ घांची आपके साथ बैठे हैं, सुपर मार्केट के सदर बैठे हैं, दानिश साहब बैठे हुए, जुल्फ़कार साहब बैठे हुए और एहतशाम अली सद्दीकी बैठे हुए, टंकी मार्केट के जो सदर हैं, और भी हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, माजिद साहब हैं, अहमद साहब हैं, जिलानी साहब हैं, इन सब ने लॉकडाउन के हवाले से बातचीत करी। आप क्या कहते हैं कि ये क्या मामला हैं ये लॉकडाउन के? लॉकडाउन ये है कि हम जो इस टाइम हमारा मुल्क के पाकिस्तान इस टाइम मुश्किल में पड़ा हुआ है और हम लोगों को चाहिए कि हम सब मिलके साथ दें। अच्छा, जो आपके जो अलायंस के चेयरमैन है मोहम्मद हनीफ घांची साहब, जिन्होंने कहा कि मकसद ये इन्होंने टाइमिंग दी कि जुम्मा और इतवार भी बंद रहेगी मार्केट और लोग जो है मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दुकानदार भी लगाएं, उनके सेल्समैन भी लगाएं और जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो भी लगाएं, तो इनसे क्या आप इनकी बात से क्या कहेंगे? मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे। अच्छा, और लोगों से क्या कहते हैं? अपनी मार्केट के बारे में अपने ताजिरों के लिए क्या कहेंगे? अपने ताजिरों के लिए मैं ये कहूँगा, दुकानदारों के लिए कि ना देखें, आप वोट तो देते हैं दुकानदार, मगर ये कि कोऑपरेट भी करें और उनकी इज्जत और सदर की इज्जत होती है। अच्छी बात। तो इसी तरीके से हम जैसे हम कहीं जाके बात कर रहे हैं, AC के पास या SHO के पास जाके बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि ना सदर की इज्जत के लिए वो रखें, कदम उठाएं और बात माने उनकी कि ना अभी 2 दिन का जो लॉकडाउन का हुआ है, तो ये कि कोऑपरेट करें हमारे साथ, 2 दिन तक दुकानें अपनी बंद रखें, जुम्मा और इतवार। तो ये है कि क्या नाम इसका, जो बहुत से दुकानदार होते हैं अपनी हवस के लिए बोलते हैं जी हम खोलेंगे और फिर वो मसले में परेशानी में आ जाते हैं, तो फिर जो है ना सदर भी परेशान होता है, वो भी परेशान होता है। जी जनाब, ये हमारे साथ थे मोहम्मदी मार्केट के जो सदर हैं रमज़ान साहब, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने भी आगाही करी, अपने जितने भी ताजिर मार्केट के उन्होंने कहा कि हम इनको बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं, इसलिए हर चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जैसा कि सब सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं और रिकॉर्ड हुई हैं, हनीफ घांची साहब से मैं ज़रा 2-3 सवाल ये करूँगा। हनीफ घांची साहब हमारे नहायती काबिल एहतराम और मोस्ट सीनियर मोस्ट लियाकत मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। हनीफ भाई, आपने जैसे ये जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, तो इससे पहले वो जो डिस्प्यूटेड चल रहा था मुख्तलिफ किस्म की कराची में मार्केटों में, ये अवाम फैला हुआ था कि भाई कोई अपने ऑप्शन पे 2 चॉइस रख लें, जैसे किसी ने रखा जुमरात, किसी ने जुमा, तो आया कि आपने ऐसी कोशिश की थी मलिर के लिए? हाँ बिल्कुल मैंने की थी, मैंने मशवरत भी की थी कि अगर कोई ऐसा, पहले तो कोशिश मेरी ये थी कि हमारा मसला हमारी मलिर की सतह पे जो है वो जुमे पे ही टल जाए, हमें दूसरा दिन जो है बंद ना करना पड़े। मेरी कोशिश तो पहले ये थी। और अगर मैंने कहा कि अगर वाकई हमें 2 छुट्टी करनी पड़े, तो हमने सबसे मशवरत करने के बाद ये फैसला किया था कि हम जुमा और पीर करेंगे। पीर का दिन इसलिए चॉइस किया था कि जुमा इतवार अब जोड़िया बाजार और सब होलसेल भी बंद है, तो पीर का इसलिए दिन चॉइस किया कि हमारे दुकानदार जुमे की बजाय जो पीर को खरीदारी कर लेंगे, उनके लिए आसानी। अच्छा, पीर आपने इस वजह से सजेस्ट किया था मैंने। वेल डन। अच्छा, इसके अलावा जो, अच्छा खैर इन बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, ये बात हमने भी अपनी सुपर लियाकत मार्केट में चलाई थी, तो अक्सरियत दानिश भाई दुकानदारों ने कबूल किया था इसको, लेकिन अल्लाह को जज़ाए खैर दे हनीफ साहब को, इन्होंने भी, आज हम इस चीज़ के सब सारे शाहिदीन बैठे हुए हैं
इन्होंने हनीफ साहब ने भी बोला था इस हिसाब से, लेकिन उसको उन्होंने मतलब नेगलेक्ट कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच हनीफ गाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, ये हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त लियाकत मार्केट के जो सदर हैं और अलायंस के भी सदर हैं माशाल्लाह, हमारे मोहम्मद हनीफ गाजी साहब, इनसे जुल्फ़िकार अली साहब जो बातचीत कर रहे थे। तो हनीफ गाजी साहब ने अपनी राय दी कि मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ एक ही दिन बंद हो, सिर्फ जुम्मे को। तो मैं कोशिश करता हूं कि 2 दिन हमें बंदी ना करना पड़े, क्योंकि हमारे दुकानदार और जो बहुत सारे और भी जो यहाँ सदर बैठे हुए उन सब की राय ये है कि एक ही दिन मार्केट बंद होनी चाहिए। ये कोशिश अपनी तरफ से भरपूर कर रहे हैं कि एक ही दिन मार्केट बंद हो। तो और आगे देखते हैं, लेकिन ये कि जब कानून लोगों को होगा तो सब पे होगा, और इंशाल्लाह इनकी कोशिश तो यही है कि ये एक ही दिन मार्केट बंद की जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने इस वक्त देखा हम यहाँ मौजूद थे अलायंस के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद हनीफ गाजी साहब, इनके साथ एक मीटिंग जारी थी जो ताजरान और मार्केट और सदर जो मार्केट के हैं यहाँ पर, ये सारे यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं। और इनकी मीटिंग जो हुई है लॉकडाउन के हवाले से, और ये अपने दुकानदारान को यहाँ पर आगाही के लिए आए थे, और इन्होंने AC DC जहाँ पे भी इनकी एप्लीकेशंस वगैरह लग रही थी लॉकडाउन के हवाले से, इन्होंने वहाँ बातचीत भी की और तमाम दुकानदारान को यहाँ पर हर चीज़ के बारे में आगाही की। जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, तमाम तफसीलात आपके पास आ चुकी हैं। हनीफ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हनीफ भाई ने 2 दफ़ा इस लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम मामला चले, पहली जो लहर आई थी उसमें भी हनीफ भाई ने तमाम मीटिंग्स अपने ऑफिस में अरेंज की और हमें गाहे बगाए आगाह करते रहे। तो उनका शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि उन्होंने दूसरी दफ़ा भी हम सबको एक जगह इकट्ठा किया, इस इवेंट्स पे बात की, इस मौके पे जो उनसे हो सकता था उन्होंने अपनी तौर पर कोशिश की और हमने उनका साथ भी निभाया। इस सिलसिले में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब यूसुफ भाई जो टंकी मार्केट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ तहसीन साहब हैं, तहसीन साहब का ताल्लुक लियाकत मार्केट से है, जनाब अंसार साहब यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मोहम्मदी मार्केट से है, मैं खुद लियाकत मार्केट से यहाँ मौजूद हूँ। बराबर में हमारे जनाब रमज़ान साहब बैठे हुए, रमज़ान साहब का ताल्लुक मोहम्मदी मार्केट से, वहाँ के सदर भी हैं, और हनीफ भाई तो किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है। साथ ही हमारे बैठे हुए जनाब जुल्फ़िकार साहब, इनका ताल्लुक सुपर लियाकत मार्केट से, वहाँ के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब जिलानी साहब, जिलानी अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक मदीना मार्केट से है जो खोखा पार्क 4 नंबर पे है। इसके अलावा हमारे साथ बैठे हुए दानिश साहब का ताल्लुक सुपर लियाकत मार्केट से है और वहाँ के सदर भी हैं। इसके साथ हमारे बैठे हुए माजिद साहब का ताल्लुक जो है वो मोहम्मदी मार्केट से, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे सबसे मोहतरम शख्सियत जनाब अहमद साहब बैठे हुए हमारे साथ। अहमद साहब ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और तमाम बातें उन्होंने वजाहत के साथ सुनी। तो इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम एलियान मलियूर को इंशाल्लाह जो दाखिल है हमारे एलियान मलियूर के साथ में, और अभी हमें ज्वाइन किया जनाब मतीन भाई ने अभी ज्वाइन किया। तो मतीन भाई का भी बहुत शुक्रिया कि मतीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो लियाकत मार्केट से इनका ताल्लुक है। और तो आगे की तरफ चलते हैं कि अब इसको वाइंड अप करने से पहले मैं इंशाल्लाह हनीफ भाई की तरफ से ये बात करूंगा कि हम आपको होप तो नहीं दिलाते, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी खुशखबरी लॉकडाउन के हवाले से हम देंगे। हम स्ट्रगल में लगे हुए, हम कोशिशों में लगे हुए। तो दुकानदार हमारे साथ कॉपरेट करते हैं। जितनी भी मार्केट के जो आल मार्केट मलियूर ताजर इत्तेहाद का जो पैनल यहाँ बैठा हुआ है, उसमें तमाम लोगों की हमारी कोशिशें और काविशें हमेशा रहेंगी। तो आगे की तरफ चलते हुए इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी खबर हम इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे जिसमें हमें रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमारे साथ जामा टंकी मार्केट के सदर एहतिशाम अली सिद्दीकी यहाँ मौजूद थे, इन्होंने आगाही करी और शुक्रिया अदा किया। जो अलायंस के सदर मोहम्मद हनीफ गाजी हैं और भी जो मार्केट के सदर यहाँ आए हुए इस मीटिंग के लिए इस लॉकडाउन के हवाले से, तो इंशाल्लाह फिर आगाही करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब।